This call is now being recorded. Okay, so we are going to start with this mobile TCP, and in this mobile TCP, these are the different topics like traditional TCP. No, the traditional TCP was the situation in which we were having the wide network. Okay, and in the wide network, everything does not work because as we have seen in the mobile IP in the previous topic, that is mobile IP, we were able to use the internet at our homes only. Okay, and when we go out of the when we come out of the homes and at a home location, then what we have to do, we have to do a lot of arrangement. Okay, and even we cannot access the internet. Okay, so what they have done, they have made the separate standard, the mobile IP ka environment standard, whatever you say. So with the help of that mobile IP, you can use the internet anywhere in the world. Okay, if you're having the phone, if you're having the device, then you can easily access the internet connection, and you can access the internet. You can access all those applications, whatever you want. Okay, so now same as that is mobile IP, we have a mobile TCP also. So in the very first topic, they have explained what are the traditional, what are the mechanism which are still there in the wired network. Okay, but those wired mechanisms will not work in the wireless one. Okay, but still they have presented the traditional TCP. तो सी भाई देखिए आपका ट्रेडिशनल टीसीपी था. नाउ व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट. ओके, उसको फिर नया नाम दिया गया, द नेम बिकम्स क्लासिकल टीसीपी. ओके, सो उसका नाम दिया गया क्लासिकल टीसीपी, एंड दे हैव मेड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन द ट्रेडिशनल टीसीपी. Okay, then we have snooping TCP also, we have mobile TCP, we have fast retransmit, fast recovery, then transmission, freezing and timeout freezing, these are the techniques. Then selective retransmission, all these topics comes under this only. So we'll try to finish in this week only, in 2-3 lectures we'll try to complete it, so that we can start the next session by from next week, because we don't have much time, and we are still completing the third chapter. थर्ड ही चैप्टर है ना हमारा ये. हाँ, क्या पता, याद ही नहीं. हाँ, ये हमारा थर्ड ही चैप्टर है, तो स्टिल वी हैव 3 चैप्टर्स. चलो ठीक है, विल ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज वी कैन. ओके, बीच में बहुत सारे इश्यूज की वजह से और बहुत सारे इनके काम की वजह से मतलब हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, बट लेट अस सी. Okay, so in traditional TCP, we are having few mechanism. Okay, I'm just gonna explain this traditional TCP only today, so that you will get an idea about it. Okay, so in traditional TCP, we are having few mechanisms which makes the TCP stronger. We have few mechanisms which makes the TCP stronger. Okay, and what are those? Those are very simple. Few of the mechanism you already know, and a few mechanism we will understand today. Okay, so let us concentrate on the traditional TCP. So before that, we have one slide. Let me go through this slide. Supporting mobility, because all the things are why we are doing all these things, because we have to provide the, or we have to support the mobility in mobile IP also. If you remember, then in the mobile IP also, we have made some standards, some some mechanism that has been made up in order to use the internet services outside of the home also. Okay, so the mobility was the main target. Okay, here also we have to support the mobility. So supporting mobility only on lower layers up to the network layer is not enough to provide mobility support for applications also. सो जहाँ पर आप मोबिलिटी सपोर्ट लोअर लेवल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको फिर आगे के लिए भी सोचना है. Most applications rely on the transport layer such as TCP, because most of the things are done with the help of this TCP and UDP. As you know, these are the transport layer protocol. तो भाई आपका माल तो यही दो प्रोटोकॉल लेके जाने वाला है, यही दो ट्रक लेके जाने वाले हैं, तो फिर इनके साथ में दुश्मनी क्यों. इनके साथ में भी आपको क्या करना पड़ेगा, मोबिलिटी सपोर्ट देना पड़ेगा. So that so that the devices which are not at home, so that the devices which are not at home and which are roaming outside, which are not in the home network, they are in the foreign network right now, they will also able to use the services accordingly and efficiently.
Okay, so the connectionless UDP does not offer much more than this addressing. दोनों का कंपैरिजन करके बताया कि आपको टीसीपी यूडीपी के अंदर टीसीपी आपका जो है वो कनेक्शन, आपका जो यूडीपी है दैट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. ओके, बट इन दैट while UDP is the connectionless and does not give certain guarantees about the reliable data delivery, ये तो हमने देखा ही ऑलरेडी, but some things are written over here regarding the UDP. अब रही बात टीसीपी की, देखो आपके मोबाइल टीसी पर के मोबाइल टीसीपी टॉपिक पर वो आया कैसे. सो पहले कंपैरिजन किया, कंपैरिजन के पहले ये बोला भाई देखो मोबिलिटी सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अब मोबिलिटी सपोर्ट आपको देना ज़रूरी है, वो इसके लिए कि एक तो टीसीपी एक तो यूडीपी है. यूडीपी कनेक्शन लेस है, गारंटी देता नहीं है, काम चोरी करता है, काम नहीं करता है प्रॉपरली यूडीपी. तो इसके लिए हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वी हैव अ नेक्स्ट ऑप्शन एज अ टीसीपी. ओके, we have next option is a TCP, that is transmission control protocol. and TCP क्या है, कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन आपको काफी सारी सुविधाएं भी देता है. okay, if they are giving, if they are providing lot of services, then we have to accept it's special, it needs a special mechanism to be used in the mobile environment. because अब तक जो था वो कौन से environment में था, वो वायर्ड environment में था. if you remember, ठीक है, हमारा जो भी था वो क्या था, फिक्स नेटवर्क था, फिक्स राउटर थे, फिक्स डिवाइसेस थे, हर कुछ फिक्स था. बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर द एनवायरमेंट इज गोइंग टू चेंज एंड द एनवायरमेंट इज गोइंग टू बिकम द मोबाइल एनवायरमेंट. if the environment is mobile environment, then you need to think a lot for TCP. It is going to be more complex and we need a special mechanism for the TCP. ओके, सो इतना सब कुछ एक थोड़ा सा थियरी है जस्ट मोबाइल टीसीपी के बारे में. ओके, आते हैं अभी आपके ट्रेडिशनल टीसीपी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल, हमारा वही घिसा पिटा रीति रिवाज वाला जो टीसीपी है उसके बारे में कुछ थोड़ा पढ़ते हैं. देन ओनली we will be able to understand and do something good for the classical TCP. ओके, सो वो हम लोग तभी कर पाएंगे, पहले इसके लिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस ओनली, and then afterward we will learn about the classical TCP, improvement, snooping TCP, indirect TCP and all that. ठीक है, so starting with this traditional TCP, we have few mechanisms. Okay, and these mechanisms you already know. Okay, we have several mechanisms for the TCP with that influences the efficiency of TCP. Okay, अब TCP को राजा किसने बनाया, टीसीपी को बोलते हैं ना भाई राजा को राजा किसने बनाया, तो राजा को राजा उसके प्रजा ने बनाई है. तो वैसे ही टीसीपी को राजा किसने बनाया, बिकॉज इट प्रोवाइड लॉट ऑफ सर्विसेज. ओके, it provide lot of services that is the only reason why TCP is good, why TCP is reliable, why TCP is connection oriented, why TCP is lot of जितने भी हम लोग सर्विसेज उसके साथ में लगाते हैं, बहुत सारी तारीफ करते हैं TCP की. so why this is TCP, because TCP has a lot of mechanism. and what are those mechanism, we have listed few mechanism as you can see on the screen. the very first is the congestion control. अब कंजेशन कंट्रोल कितना अच्छा प्रोवाइड करता है हमको उसके बारे में बताया, सो दैट उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग को पढ़ना है. सो पहले तो कंजेशन कंट्रोल प्रोवाइड करता है, देन इट प्रोवाइड स्लो स्टार्ट. स्लो स्टार्ट आप लोगों ने कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यहाँ पर, लेकिन उसको आपको पढ़ना है कि स्लो स्टार्ट होता क्या है, बिकॉज लॉट ऑफ द टॉपिक्स आर रिलेटेड विद ईच अदर. सो पहले कंजेशन कंट्रोल को एक्सप्लेन होगा, उसके बाद में स्लो स्टार्ट आएगा, एंड आफ्टर दैट स्लो स्टार्ट के बाद में फास्ट रीट्रांसमिट, फास्ट रिकवरी की रिक्वायरमेंट है, एंड देन इम्प्लीकेशन, द इफेक्ट एंड द क्या बोल सकते हम लोग को, उसके इम्पैक्ट ऑन द मोबिलिटी. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द कंजेशन कंट्रोल फर्स्ट. मैंने बहुत सारा कुछ लिखा हूँ, इसमें से हम लोग को सब नहीं देखना है, मैं जस्ट आप लोग को एक थोड़ा सा थॉरोली बता देता हूँ. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वापस रिवाइज कर रहा हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, we have started with the traditional TCP. okay, we have started with the traditional old वाला घिसा पिटा वाला TCP. अब ये TCP को TCP किसने बनाया, because of some mechanism, it has some mechanism, it has some features. okay, and those features I have listed down the road. ठीक है, you can see congestion control, slow start, fast retransmit, fast recovery, then implications on the mobility. so these are few we can say mechanisms.
Starting with the first mechanism that is congestion control. Okay, कुछ छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें कंटेंट ज़्यादा इसके लिए ऐड किया हूँ सो दैट यू कैन लर्न इट लेटर, यू कैन रीड इट लेटर, बिकॉज you know reading from the book reading from the book is quite difficult for you people to take out important points from those textbooks, and from the reference book is quite difficult for you people. So I have taken out the things whatever is required for the particular topic. I'm taking out those things and I'm placing it in the slides only, so that हमारा काम का काम भी हो जाएगा, and then you can refer this particular slide for your examination also. Okay. Transport layer protocol such as TCP have been designed for fixed end system. एक बात तो पहले पक्की आप लोग समझ लो. We are learning about the traditional TCP and you know the traditional TCP में सबका सब आपका क्या था, पहले क्या था, सबका सब पहले फिक्स था. जब तक मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आया, एंड अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, यानी आपके ऑल द नेटवर्क वर फिक्स्ड and you are having the fixed system also, everything was fixed. Okay, पहले पहले सब सारा काम वायर से चलता था. ठीक है, तो सब अगर वायर है तो आपको रेस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, अगर वायर नहीं है तो आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो. बट एंड इन दोज डेज वी वर हैविंग द फिक्स नेटवर्क, वी वर हैविंग द फिक्स सिस्टम्स. ओके. Data transmission takes place using network adapters, fiber optics, copper wires, special hardware for router. तो ये सब उसने हार्डवेयर पार्ट बता दिया कि केबल्स लगते थे, राउटर्स लगते थे, हार्डवेयर पार्ट लगता था, बिकॉज ऑल द थिंग्स वर फिक्स्ड. एंड दिस हार्डवेयर टिपिकली वर्क्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसमिशन एरर. अच्छे से काम चलता था. Congestion may appear from time to time even in carefully designed network. Still if you have designed the network very carefully, then still you will encounter with the congestion होगा, कहीं ना कहीं होगा. इवन आपने बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया है, आपने बहुत अच्छा सा नेटवर्क डिजाइन किया है, और ऐसा नेटवर्क डिजाइन किया है कि उसके अंदर आपको कंजेशन नहीं मिलना चाहिए, बट स्टिल द कंजेशन में एनकाउंटर और कंजेशन में अकर. द पैकेट बफर. अब तो ये पूरा उसने मैं मतलब पूरा एक पूरा स्टेटमेंट है. क्या होता है बेसिकली, आपका जो राउटर होता है, मैं आपको पूरा जो लाइन है, ये वाली जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ. राउटर्स पर बेसिकली क्या होता है, ईच एंड एवरी राउटर मेंटेन्स बफर. आपको पता है बफर क्यों मेंटेन करते हैं, क्यों मेंटेन करते हैं, क्यों मतलब वो लाइन वाला क्यों. ओके, दैट दीज राउटर मेंटेन द बफर क्यूज. ओके, या फिर मैं दो वर्ड बोलते रहा हूँ, सॉरी. These router maintains the queue or buffers. Okay, and in this buffer or in these queues, when the packet reaches at the destination, they are put into the particular queue or buffer. ठीक है, जब उसका टर्न आएगा तब उसको लेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे, ये भी आपको पता है. ओके, अगर आपका जो बफर है, अगर ये फुल होता है, अगर ये आपका बफर फुल होता है एंड इट गोज आउट ऑफ द कैपेसिटी, देन व्हाट विल हैपन. अगर ये कैपेसिटी के बाहर जाता है तो क्या होगा, सिंपली योर राउटर इज गोइंग टू ड्रॉप द पैकेट. ओके, योर राउटर इज गोइंग टू ड्रॉप द पैकेट, और यहाँ पर ड्रॉप करेगा, और फिर क्या होगा, इन रिजल्ट व्हाट विल हैपन, योर सेंडर इज गोइंग टू रीसेंड द पैकेट अगेन, बिकॉज उसको टाइमर आउट होने के बाद में उसको जब नहीं मिलेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, तो वापस से सेंड करेगा, वापस से ड्रॉप, वापस से सेंड, वापस से ड्रॉप. तो ऐसे कुछ आपके congestion like situation create हो जाती है. Okay, the packet buffers of the router are filled and the router cannot forward the packet fast enough because the sum of the input rates of the packet destined for one is higher than the capacity of the output link. तो ऑलरेडी फुल है, मैं इसका खाली आपको मोरल बता दिया था, उसका समरी बताया. The only thing a router can do in this situation is to drop the packet. तो उसके पास में और कोई रास्ता नहीं है, it will simply drop the packet. A drop packet is lost for the transmission and the receiver notices a gap in the packet stream. आपके एक डेटा के 5 पैकेट बनाए, 5 पैकेट जा रहे, एक पैकेट बेचारा चला गया, ड्रॉप हो गया, रिसीव नहीं, उसको जगह नहीं मिली, राउटर के पास जगह नहीं थी, राउटर ने ड्रॉप कर दिया. ड्रॉप करने के बाद में क्या होगा, जब 5 पैकेट वहां पहुंचेंगे तो 5 नहीं पहुंचेंगे, 4 ही पहुंचेंगे. जब 4 पहुंचेंगे तो स्ट्रीम ऑफ पैकेट में से एक पैकेट गायब दिखेगा. तो क्या हो गया, ये बेसिकली लॉस्ट ही हुआ ना. एंड द रिसीवर नोटिसेस अ गैप इन द पैकेट स्ट्रीम. इस 5 में से एक उसको क्या दिखेगा, गैप दिखेगा. So the sender notices the missing acknowledgement for the lost packet and assumes a packet loss due to the congestion.
ठीक है। तो वो अब आपका यहाँ पर आपने ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल, क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल दोनों मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़े। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स वी हैड गॉन थ्रू द ओपन लूप एंड कंजेशन, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू द ओपन लूप क्या होता है, we have lot of policies, okay, we have defined lot of policies like retransmission policy, window policy, ये policy वो policy, around 5 policies we have। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, when you enter or you when you come when you enter through the highway, okay, national highway, some instructions are written on the on the left hand side or the right hand side, whatever। So some instructions are there like if you are the टू व्हीलर को अलाउड नहीं है, फोर व्हीलर में जो एल है उसको लेफ्ट में चलना है, उसको राइट में चलना है, जो एच है हाई द हैवी मोटर व्हीकल उसको लेफ्ट में चलना है, ओके। कार्स आर नॉट अलाउड, ओके, टू व्हीलर्स आर नॉट अलाउड, ओके। और फिर रास्ते में आपको इंस्ट्रक्शन देती है, इफ़ यू इमरजेंसी के लिए आप यहाँ से फ़ोन बूथ से कॉल कर सकते हैं, एंड लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन सो दैट अगर इन केस एक्सीडेंट होता है सो इट कैन बी it can be adjusted or it can be compensated। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आर नथिंग बट दी पॉलिसीज which comes under the ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल। तो कंजेशन ना हो इसके लिए कंजेशन कंट्रोल आपको बहुत सारी पॉलिसीज देता है, ओके। वो पॉलिसीज पे आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो पॉलिसी आपको इम्प्लीमेंट करना है सो दैट कंजेशन ना हो। तो ये है आपका ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन हो गया, होने के बाद में आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू कॉम्पनसेट इट, आपको उसको रिमूव करेंगे। सो पहले क्या था, प्रिवेंट कर रहे थे आप पहले प्रिवेंट कर रहे थे, अब होने के बाद में क्या करेंगे, उस कंजेशन को रिमूव करेंगे। हाईवे पे जा रहे हैं आपने, चलो सब इंस्ट्रक्शन फॉलो किया किसी ने, और होने के बाद में भी फिर भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको करना यह है कि फिर आपको इमीडिएट उसका एक्शन लेना है। एक्शन कैसे लेंगे, आप गाड़ी को साइड में लेंगे, कॉल करेंगे इमरजेंसी, और फिर कोई मतलब साइड में लेंगे ताकि पीछे और मतलब ज़्यादा कंजेशन ना हो, जो पीछे गाड़ियाँ रुकी आपकी वजह से तो वो साइड से निकले। तो ये सारा अरेंजमेंट को आपको करना है ना, कि आप एक्सीडेंट को रिमूव करना है। तो यहाँ पर भी क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you are going to remove that particular congestion with the help of different mechanism, okay। so ये पूरा का पूरा आपका congestion control में आता है। so this congestion control mechanism is there in your ट्रेडिशनल टीसीपी। तो यहाँ पर अप्लाई होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो हमारे बहुत सारे पैकेट जो लॉस हो जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वन, ठीक है। तो ये पहला मैकेनिज्म था आपका, ये पहला मैकेनिज्म था ट्रेडिशनल टीसीपी का, दैट इज कंजेशन कंट्रोल। आते हैं फटाफट सेकंड वाले मैकेनिज्म पे। द सेकंड मैकेनिज्म इज अबाउट द स्लो स्टार्ट। वेरी वेरी सिंपल, ये स्लो स्टार्ट के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं, इसके लिए उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। So in slow start, what is the slow start mechanism? The behavior TCP shows after the detection of congestion is called the slow start। एक बार पता चला कि कंजेशन हुआ है, ओके, अगर कंजेशन होने के बाद में फिर जो बिहेवियर आपका टीसीपी शो करेगा, जो एक्शन परफॉर्म करेगा, जो एक्शन परफॉर्म करेगा या जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा कंजेशन होने के बाद में, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज द स्लो स्टार्ट एक्टिविटी। अब ये स्लो स्टार्ट एक्टिविटी में होता क्या है देखते हैं, ध्यान से देखो, सिंपल है, आपको दिमाग में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द वाइवा क्वेश्चन। द सेंटर ऑलवेज कैलकुलेट द कंजेशन विंडो फॉर द, एक टाइम पे कितने, द सेंटर ऑलवेज कैलकुलेट द कंजेशन विंडो फॉर द रिसीवर। भाई एक टाइम पे कितने पैकेट भेजना है, कंजेशन विंडो के बारे में हम लोग ने पढ़ा है पहले सीएम के अंदर। कंजेशन विंडो क्या होती है, इट इज द विंडो दैट हाउ मेनी पैकेट, फॉर एग्जांपल इफ योर कंजेशन विंडो इज लाइक 2, लाइक 3, लाइक 4, 5, 6, वॉट एवर कंजेशन विंडो यू कैन हैव। सो अकॉर्डिंग टू दैट विंडो हाउ मेनी पैकेट आर सेंडिंग एट अ टाइम, ठीक है। अगर कंजेशन विंडो आपकी 4 है तो मतलब आपके 4 आपकी मतलब के 4 पैकेट्स कैन बी सेंड एट अ टाइम according to the congestion window, okay। So
your sender always calculate according to the capability of the receiver. It will send the number of packet, or it will decide the number of window, या फिर window की size उसके हिसाब से decide करते हैं. ओके. द स्टार्ट साइज. अच्छा, कंजेशन हो गया. देखो होता है ना हमारे घर पे, अगर कोई बीमार हो जाता है, एवरीवन प्लीज केयरफुली लिसन इट. अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद में जब वो रिकवर होता है, ओके, तो बीमार होने के बाद में जब वो अच्छा हो जाता है, थोड़ा उसकी दवाई ववाई खत्म हो गई, तो क्या करते हैं उसको सीधा फिर चिकन बिरयानी और कौरमा और फिर एकदम हैवी हैवी फूड देते हैं हम लोग उसको? नहीं देंगे. क्या करेंगे हम लोग उसको? हम लोग उसको सिंपली दाल खिचड़ी, सिंपल रवा, सिंपल जो भी रहेगा एकदम एकदम वो बोलते हैं ना उसको लाइट फूड. सो लाइट फूड हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. तो क्या होगा, उसका डाइजेशन अच्छा रहे और सब कुछ अच्छे से मेंटेन होते होते आहिस्ता स्लोली 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 इट विल गेन द स्ट्रेंथ. ओके. तो ये हमारा एक मैकेनिज्म है. तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है, बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ है, कंजेशन हुआ है. अब उस कंजेशन को हम लोगों ने रिमूव तो कर दिए, कार स्क्रैप में दे दिए, पर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिए और सब कुछ खो गया. लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते. हम लोग डायरेक्टली मतलब सब कुछ एकदम हाई हाई नहीं जा सकते. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन द, और वी हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर विंडो साइज एज अ 1. उसको हम लोग को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है. कैसे ग्रो करेंगे, दैट आई विल शो यू. द स्टार्ट साइज ऑफ द कंजेशन विंडो इज 1 सेगमेंट, दैट इज 1. आपके विंडो का साइज क्या हो जाएगा, 1. ओके. एंड यू विल बी एबल टू सेंड ओनली 1 पैकेट एट अ टाइम. बोलते हैं ना, अभी थोड़ा सा अभी मतलब बीमार थे, अभी उठे हैं, तो अभी स्लोली स्लोली करो. सो एक पैकेट एक टाइम पे आप लोग भेजेंगे. द सेंटर सेंड्स 1 पैकेट एंड वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट. तो चेक कर रहा है भाई साहब. if the acknowledgement arrives, the sender increases the congestion window by 1, now sending 2 packet, that is now congestion window becomes how much, 2. Okay. तो पहले एक भेजा, after sending the first packet it will wait for an acknowledgement. If it will receive the acknowledgement, then भाई चलो सक्सेसफुली आ गया. चलो मतलब आप थोड़ा सा डोज बढ़ा सकते हैं. ठीक है. अब दाल खिचड़ी के बजाय थोड़ा सा और अच्छी चीज देंगे. ठीक है. तो एक्नॉलेज, तो ये आपने क्या कर दिया, कंजेशन विंडो की साइज कर दी है 2. आफ्टर मेकिंग इट द कंजेशन विंडो साइज एज 2, देन उसका भी हम लोग चेक करेंगे. 2 पैकेट साथ में भेजेंगे, 2 पैकेट साथ में, बिकॉज द कंजेशन विंडो इज 2. ओके. द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो इज 2, तो विल सेंड 2 पैकेट्स एट अ टाइम. विल सेंड 2 पैकेट एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट. जैसे ही आ गया, आने के बाद में क्या करेंगे, दोनों के एक्नॉलेजमेंट अगर मिलते हैं तो व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द कंजेशन विंडो का साइज. लेट अस सी. आफ्टर अराइवल ऑफ 2 corresponding acknowledgement, after arrival of 2 corresponding acknowledgements, the sender again adds 2 to the congestion window. 2 के बाद में 2 और ऐड किया, 1 for each of the acknowledgement. ठीक है. so now the congestion window equals 4. The scheme doubles the congestion window every time the acknowledgement come back. जैसे acknowledgement मिलता है, जो जो उसने परफॉर्म किया उसका acknowledgement अगर मिला, एक भेजा मिला, उसको बढ़ा के 2 किया, 2 भेजा, 2 का acknowledgement मिला, 2 से 4 किया, 4 को अब भेजेगा, और 4 के बाद में जैसे जैसे बढ़ेगा उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जाएगा. ठीक है. और इन दिस वे, अच्छा ये जो ग्रो करना है, ये जो उसने जो उसकी विंडो साइज वो इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज करना भी थोड़ा सा घातक है. ये इंक्रीज करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी अभी ये बीमार हुआ था, और बीमार होके आप क्या करें, पहले एक दिन थोड़ा अच्छा दिए, उसके बाद में और अच्छा, उस समय और अच्छा, तो 2-3 दिन में आपकी एक्सपोनेंशियल साइज काफी बढ़ जाएंगी. तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसके हम लोग उसके बाद वाले सेक्शन में देखेंगे. So this is called the exponential growth of the congestion window in the slow start mechanism. So remember guys, this is the slow start mechanism. In the slow start mechanism, first of all the congestion window is made 1. Okay, it means 1 TCP packet at a time in a congestion window, and after successfully receiving the acknowledgement from the receiver, it will be made 2. Okay. So after the successful receiving of the acknowledgement for those 2 packet, acknowledgement जब उनका 2 का मिलेगा, will increase the size of the congestion window exponentially. okay. तो ये जो मैकेनिज्म है आपका, इसको बोलते हैं स्लो स्टार्ट. कंजेशन के बाद में स्लो 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 स्टार्ट करो. ओके. ये आपका सेकेंड मैकेनिज्म है जो आपके ट्रेडिशनल टीसीपी में चलता है.
आते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड फोर्थ फटाफट करना है। हाँ, दैट इज फास्ट retransmit and fast recovery. Okay. So the gap in the packet stream is not due to the severe congestion. कभी कभी होता है ऐसा, this may happens occasionally because we understand that this packet loss is due to the congestion. Okay, but actually वो congestion नहीं होता है, वो क्या होता है, वो सिंपल पैकेट लॉस होता है, आपके ट्रांसमिशन एरर की वजह से भी होता है कभी कभी। सो every time when the packet is being lost, every time when the packet is being lost is not due to the congestion, not due to the congestion, it may happen that के वहां पर simple transmission error आए हो, possibility है। Okay, so the same thing in the first statement, the sender can now retransmit the missing packet before the timer expires। अब अपने को टाइमर का कॉन्सेप्ट आप लोग ने ऑलरेडी पढ़े हैं। ओके, और टाइमर अगर एक्सपायर हो गया तो क्या होगा फिर, टाइमर एक्सपायर अगर हुआ तो फिर आप मतलब देखो अब थोड़ा सा सिचुएशन समझो, कंजेशन हुआ है, कंजेशन के बाद में आप क्या कर रहे हो, स्लो स्टार्ट के थ्रू आप कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसमिशन कर रहे हो, लेकिन स्लो स्टार्ट के थ्रू अगर आप करोगे तो फिर आपका जो टाइमर है वो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक और मैकेनिज्म है हमारे टीसीपी के पास में जिसको बोलते हैं फास्ट रीट्रांसमिट। ये फास्ट रीट्रांसमिट क्या करता है, टाइमर खत्म होने से पहले जाके आ जाता है। ठीक है, सो द सेंडर कैन नाउ रीट्रांसमिट द मिसिंग पैकेट। तो बेसिकली उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था, ठीक है, और हम हर एक मिसिंग पैकेट को हम कंजेशन नहीं समझ सकते। ठीक है भाई, जब भी कुछ हुआ तो बोले कंजेशन नहीं किया, जब भी कुछ हुआ तो कंजेशन नहीं किया। सो दिस इज नॉट द सिचुएशन। हो सकता है कि वहाँ कुछ सिंपल ट्रांसमिशन एरर आए हो, तो वहां पर उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, द सेंडर कैन नाउ रीट्रांसमिट द मिसिंग पैकेट बिफोर द टाइमर एक्सपायर, and this mechanism of sending the packet, retransmitting the missing packet, in the very fast mode, this is called the fast retransmit। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मतलब कंजेशन हो रहा है, कंजेशन की वजह से हमारा पैकेट लॉस हुआ, लेकिन कंजेशन की वजह से हमेशा नहीं होता है। ओके, और हमको फिर क्या करना होता है, जो मिसिंग पैकेट है उसको फौरन हम लोग को लाना पड़ता है, यानी कि फौरन उसको रीट्रांसमिट करना पड़ता है सेंटर को। दैट टेक्निक इज कॉल्ड फास्ट रीट्रांसमिट टेक्निक। ओके, तो एक ये फास्ट रीट्रांसमिट का है। द रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट शोज दैट देयर इज नो कंजेशन टू जस्टिफाई स्लो। ये छोड़ दो, द सेंडर कैन कंटिन्यू विद द करंट कंजेशन विंडो। जो भी है आप बोलेंगे ना भाई कंजेशन हुआ है, कंजेशन हुआ है, वापस से कंजेशन विंडो अभी उस टाइम पे चल रही थी, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे जो कंजेशन विंडो की साइज होंगी वो होंगी 8, फॉर एग्जांपल 8 चाहिए, मतलब 8 पैकेट साथ में जा रहे हैं, लेकिन कोई एक आध पैकेट ट्रांसमिशन एरर की वजह से अटक गया, रुक गया, तो आप हर बार ये नहीं सोचोगे कि नहीं कंजेशन हुआ है, कंजेशन हुआ है, और फिर आप क्या करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे कि फौरन जो विंडो साइज है, चलो भाई इसको कम कर दो अभी, ठीक है, इसको कम कर दो, 1 पे कर दो, 1 पे करेगा तो फिर आपकी एफिशिएंसी मार खा जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग को वो सब चीज भी ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करेंगे फिर, the sender will continue with the same congestion window by considering और by imagining that भाई वो congestion नहीं था, वो simple transmission error था। ठीक है, तो आपका जो विंडो साइज है वही रखो। ठीक है, और ये अगर आप रखते हैं तो क्या होगा फिर, द सेंडर परफॉर्म्स अ फास्ट रिकवरी फ्रॉम द पैकेट लॉस्ट। ठीक है, जब फास्ट रीट्रांसमिट करेगा तो फिर फास्ट रिकवरी भी होगी ऑब्वियसली, जो एक दो जो भी हमारा पैकेट लॉस हुए हैं, तो वी कैन कंपनसेट द थिंग्स। ओके, and this mechanism can improve the efficiency. Obviously I told you earlier only, in order to improve the efficiency, we can check this one, this mechanism can be used to improve the efficiency of your TCP, because we are talking about the TCP only। okay, so we have a fast retransmit, जैसे फास्ट रीट्रांसमिट होगा वैसे फास्ट रिकवरी भी होगी। ओके, सो फास्ट रीट्रांसमिट, फास्ट रिकवरी के बारे में। देन उसके बाद में लास्ट है आपका इम्प्लीकेशंस ऑन मोबिलिटी। एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर है वो। ओके, चलो उसको एक बार थोड़ा थोड़ा गो थ्रू ही कर लेते हैं। वी हैव टाइम, इतनी स्लाइड हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सो कंजेशन कंट्रोल हुआ, सॉरी कंजेशन हुआ,
So you have a mechanism like open loop, closed loop, you have a mechanism. Okay, in open loop you have some policies, in closed loop you have some mechanism. तो आपने कंजेशन कंट्रोल का मैकेनिज्म कंप्लीट किया. सो यू हैव वाह वेरी गुड, यू हैव अ कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इन योर टीसीपी. दैट्स वेरी गुड, ग्रेट. Second, after congestion happens, okay, after congestion has happened and occurred, okay, what you're going to do, you're going to make the slow start, the second mechanism. Wow, very good. After congestion, after bimari, you have got this mechanism like slow start. That's very good. आगे बढ़े. So every error or every packet loss cannot be considered or we cannot put into the quote of the congestion control. हम लोग हर किसी को congestion control में count नहीं कर सकते. Then we have the another mechanism that is fast transmit and fast recovery, so that it will improve the efficiency of your TCP. आपके TCP की जो मतलब एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए मैकेनिज्म बहुत काम आएगा. उसके बाद में अब आते हैं लास्ट वाले मैकेनिज्म पे, दैट इज इम्प्लीकेशन. समझ देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है. While slow start is one of the most useful mechanism, as we have seen that slow start makes your congestion very controlled. ठीक है, उसको बहुत ही कंट्रोल में करता है और स्लो स्टार्ट अच्छे से स्टार्ट करा के देता है आप लोग को. While slow start is one, अगर वाकई में आपका कंजेशन हुआ है तो, अगर नहीं हुआ है तो फिर जबरदस्ती का फिर आप फंस जाओगे. तो स्लो स्टार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मैकेनिज्म इन द फिक्स्ड नेटवर्क. It drastically decreases the efficiency of TCP. भाई स्लो स्टार्ट एक जहां पे आपके TCP की एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, वहीं पर क्या कर रहा है, उसी TCP की एफिशिएंसी डिक्रीज कर रहा है if used together with mobile receiver or sender. In short, if you are going to use this mechanism, that is slow start mechanism, in the wide network, देन ये आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से ला के देगा. बट आप सेम मैकेनिज्म को अगर आप यूज करते हैं आपके मोबाइल एनवायरनमेंट में तो ये आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा. कैसे देखते हैं. द रीजन फॉर दिस इज यूज ऑफ द स्लो स्टार्ट अंडर द रॉन्ग असम्पशन. मैंने आपको पहले ही बोला, फ्रॉम अ मिसिंग एक्नॉलेजमेंट टीसीपी कंक्लूड अ कंजेशन कंट्रोल. तो भाई थोड़ा सा एक पैकेट मिसिंग हुआ, फौरन सब घबरा गए, हाँ भाई कंजेशन हुआ रहेगा तभी हमारा पैकेट मिसिंग हुआ है. बिकॉज आपके वायर में क्या हो रहा है, मीडियम में क्या हो रहा है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. ओके, सो यू कैन नॉट मेक अ कॉल, आप कुछ सोच नहीं सकते वहां पर क्या हो रहा है. सो यू नीड लॉट ऑफ मैकेनिज्म टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस पर्टिकुलर सेशन इनटू द नेटवर्क सो दैट द थिंग्स विल बी इन द कंट्रोल. So from a missing acknowledgement, TCP concludes a congestion control, the congestion situation. While this may also happen in the network with mobile and wireless end system, it is not the main reason for the packet loss. हो सकता है ये reason ना हो, कुछ और reason हो, simple transmission error as I told you earlier. So mobility itself can cause packet loss. अभी mobility क्या आ गई? Mobility तो मैंने आपको बता दिया. Mobility, the capability of moving from one location to another location and still you are using and still you are accessing the internet services. Not internet services, all the services you are accessing. ठीक है? यानी कि accessing all the services while on the move. ठीक है? That is called the mobility. So mobility भी कभी-कभी packet loss करवाती है. कैसे? Example मैंने लिखा हूँ. There are many we have many situations where a soft handover from one access point to another is not possible for a mobile end system. Example है जैसे आप मूव हो रहे हो, ठीक है, आप मूव हो रहे हो, अभी आप कनेक्टेड हो एक एक्सेस पॉइंट से, मतलब एक राउटर से आप कनेक्टेड हो. अभी फिलहाल आप एक राउटर से कनेक्टेड हो और राउटर से कनेक्टेड होने के बाद में एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड रहने से आप अभी कनेक्टेड हो, आप कंटिन्यू मूव कर रहे हो. दैट एक्सेस पॉइंट विल बी हैविंग सम एरिया. Okay, your access point will be having some circle, some area, okay, in which it can provide the services. अब वो एरिया से बाहर जैसे ही निकलेगा, आप मतलब आप जब निकलोगे तो आप फर्स्ट एक्सेस पॉइंट की रेंज से बाहर हो जाओगे. ठीक है, जिसको हम लोग देखो सिंपली हैंड ओवर बोलते हैं. ठीक है, हैंड ओवर यानी कि व्हाटएवर फाइल्स दिस एक्सेस पॉइंट इज हैविंग,
regarding this particular user, just hand over this particular information to the cell or to the access point in which the user is moving. Okay, आपका यूजर जिस पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है तो वो एरिया के एक्सेस पॉइंट को, वो एरिया के जो हेड है उसको जाके सारी इंफॉर्मेशन हैंड ओवर कर दो. सो दैट्स अ हैंड ओवर. ओके, सो फॉर एग्जांपल जहाँ पर देखो, एक बार देखो, for example when using mobile IP, there could still be some packets in the transit to the to the old foreign agent while the mobile node moves to the new foreign agent. तो भाई एक है, मैं आपको कुछ बता दूं, ये है बॉल पेन. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ओल्ड है फॉरेन नेटवर्क, ओल्ड फॉरेन. ये हमारा फॉर एग्जांपल एक है, आपका जो मोबाइल है वो आपके हाथ में है. ठीक है, और आप यहाँ से चल रहे हो. चलते 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 आप क्या हो गए, फर्स्ट वाले एक्सेस पॉइंट से निकल के, उसकी रेंज से निकल के आप सेकंड वाले के रेंज में आ गए हो. ठीक है, द ओल्ड फॉरेन एजेंट मे नॉट बी एबल टू फॉरवर्ड दोज पैकेट टू द न्यू फॉरेन एजेंट. अच्छा, उस टाइम पे ही आपका मोबाइल आप यूज कर रहे थे. ठीक है, थोड़ा सा देखो फोकस कर लो, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ. ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल फोन था. ओके, आपके हाथ में मोबाइल फोन था, आप इस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट से यूज कर रहे थे. ये आपका एंटीना है, ये आपका टावर है. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट यू आर यूजिंग द सर्विसेज. ओके, अब सर्विस यूज कर रही है. फॉर एग्जांपल आप कुछ डाउनलोड कर रहे थे, 500 MB का आप डाउनलोड कर रहे थे. करते 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 क्या हुआ कि आप यहाँ से यहाँ पे निकल ली. तो अब फॉर एग्जांपल 5 MB का, चलो छोटा ही पकड़ो, 5 MB का डाउनलोड कर रहे थे. तो 5 MB डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट जैसे हुआ तो वो आप क्या हुआ, 1 MB हुआ, 2 MB हुआ, और आप यहाँ से यहाँ पर मूव हो गए. आप जब आप यहाँ पर डेटा एक्सेस कर रहे थे और यहाँ से आप डाउनलोड कर रहे थे, सो मीन वाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो एंड यू आर मूविंग ऑल्सो. ठीक है, सो वाइल मूविंग यू एंटर्ड इनटू द अनदर एक्सेस पॉइंट एरिया, लाइक दिस इज द एक्सेस पॉइंट 2 एरिया. ये 2 का एरिया, ये 1 का एरिया. ठीक है, तो जैसे ही हुआ तो व्हाट दे विल ट्राई टू डू, these access point, ये वाला access point and ये वाला access point, these access point will try to share or will try to share the information of this particular user who is moving from this network to this network. तो हैंडओवर होने की कोशिश मतलब स्टार्ट होगी, मतलब हैंडओवर करना है हमें. लेकिन जैसे ही हैंडओवर करेगी, मतलब जैसे ही आपका बंदा यहाँ पर मूव होगा, तो मूव होने के बाद में जो रिमेनिंग डेटा है, जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है, वो आ नहीं पाएगी. ठीक है, वो प्रॉपरली हैंडओवर हो नहीं पाएगी. ठीक है, सो ये जब अगर हैंडओवर हो नहीं पाया वो सारी इंफॉर्मेशन, आपने 2 MB आपका आ गया था और 3 MB नहीं आया, तो क्या दिखाता है आपको, कभी कभी इन केस अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ डाउनलोड कर रहे हो, कभी आपने नोटिस अगर किया होगा, मैंने नोटिस किया था. सो आप अगर नोटिस करेंगे तो आपका कुछ डेटा आ गया और फिर आपका डाउनलोड फेल दिखा देता है. डाउनलोड फेल दिखा दिया बिकॉज वो प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस जो एरिया में मैं गया हूँ वो एरिया वाले के पास में सारी इन्फॉर्मेशन आ नहीं पाई. ठीक है, इसके लिए वो डाउनलोड फेल दिखाए. अब जब यहाँ पर आने के बाद में जब आप उसको रीट्राई करेंगे, तो री डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाता है, बिकॉज नाउ यू आर फुल्ली कनेक्टेड विद द नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट जहाँ पर आप आ गए हो. ठीक है, सो ये जो आपका जो मोबिलिटी हुआ है, इस पर्टिकुलर सेल से इस पर्टिकुलर सेल में आप आए हो, यहाँ से यहाँ पर जो आए हो, so that mobility is also causing your packet loss. Okay, so that's why this is written like this, कि mobility itself can cause packet loss. ठीक है, तो आप मूव हो रहे हो तो आपका पैकेट लॉस हो सकता है. So this packet loss has nothing to do with the wireless account, but is caused by the problem of rerouting the traffic. सारी बातें, आप जब यहाँ से यहाँ चले गए तो उसको प्रॉपरली पाथ नहीं मिल पाया होगा, और जब पाथ नहीं मिला तो सिंपल बेचारा पैकेट हवा में डिसॉल्व हो गए, यानी कि कहीं भी निकल गए और लॉस हो गए. Okay, so yeah, this is my fourth mechanism which were there in the traditional TCP. Okay, so let me revise the thing what we have done for this traditional TCP. मैंने आपको इसको इतना थोड़ा डीप में इसके लिए लिया है कि ये सारे topics will help us in order to understand the next topic. Like we have to start with the classical TCP improvement. So now what are the new improvement that has been done by the people in the new TCP, that is called the classical TCP. Okay, so ये पढ़ना है, then उसके बाद में स्नूपिंग, मोबाइल एंड दिस फ्यू टेक्निक्स पढ़ना है. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी. ओके,
आई होप आपको ये इसका जो इंट्रोडक्शन है और ट्रेडिशनल टीसीपी का जो मतलब मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताया हूँ, इसके 4 मैकेनिज्म्स बताया हूँ. दीज आर द फ्यू मैकेनिज्म, मे बी मोर मैकेनिज्म कैन बी इंक्लूडेड इन द मोबाइल टीसीपी. वो सेक्शन में ट्रेडिशनल टीसीपी हम लोग और भी मैकेनिज्म डाल सकते हैं, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वन. ओके, थैंक यू सो मच. लेट मी गिव द अटेंडेंस. इरम फातिमा.